तेलंगाना न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत तेलंगाना की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। बीसी जेएसी की जानिब से 42% तहफुजात के मुतालबे पर कल रियासत गिर बंद का ऐलान। कांग्रेस व दीगर जमातों ने बंद की तायद की। तेलंगाना हुकूमत का संगारिनी मुलाजमीन के लिए दिवाली का तोहफा 400 करोड़ रुपए के बोनस का किया गया ऐलान। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सबको साथ लेकर चलने का दिया मशवरा। महबूब नगर के मॉडल बेसिक हाई स्कूल में तालीमी मेले का इनेकाद। एमएलए यानम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। असातिज़ा की तख्लीकी कोशिशों की सराहना की। पंचकुंडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हशीश ऑयल सप्लाई करने वाले बैन रियासती टोली का किया पर्दाफाश। 1.5 करोड़ मालियत का हशीश ऑयल जब्त। बीसीजेएसी की रियासती लीडर वडेरा संगम के कौमी सदर पी श्रीधर ने अपील की है कि कल बीसीजेएसी की जानिब से दिए गए बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीसी बिरादरी को अपने हुकूक हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बांसवाड़ा में मुनक्किदा बीसीजेएसी इजलास में उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत की 60% आबादी वाले बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब 9% आबादी वाले आला तबकात को 10% रिजर्वेशन दिया गया तो बीसी ने एतराज नहीं किया था। उन्होंने तालीम, रोजगार और सियासत के शोबों में बीसी के लिए रिजर्वेशन को लाजमी करार दिया। రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ బంద్ కోసం బీసీ సంక్షేమ సంఘం వనగంగాధర్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుని చెప్పడం ఏమైందంటే రేపు అందరూ మనకు బీసీ రంగం నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. అందరూ ఒకతాటిగా వచ్చి మేము రేపు ఎక్కువ సంఖ్యలో బైక్ ర్యాలీ తీసి బాన్స్వాడ బంద్కు జయప్రదం చేయగలరని కోరడం అయింది. అందరూ మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి మేము ముందుకు వస్తామని బీసీ సంక్షేమ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन न मिलने का वाहिद जिम्मेदार मरकज की बीजेपी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बारहा सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त मांगी, लेकिन मरकज ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि 18 अक्टूबर को बीजेपी के खिलाफ होने वाली एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారి నాయకత్వంలో బిల్లుకు అడ్డుపడి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఓబీసీలకు ఆగవాగం చేస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అందరూ రేపొద్దున బంద్లో పాల్గొనవలసిందిగా కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారిని, అట్లాగే బీజేపీకి సంబంధించిన ఈ రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థలో 2 కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని, సంజయ్ గారిని అందరినీ అడుగుతా ఉన్నాను, ఎందుకు మీరు ఓబీసీలకు సంబంధించిన బిల్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలియజేస్తే మీరు ప్రధానమంత్రి దగ్గర కూర్చొని ఈ బిల్లుని పార్లమెంట్లో పెట్టించి మీరు ఎందుకు పాస్ చేయించకుండా అడ్డుపడతా ఉన్నారు? మీ అడ్డుపడుతున్నటువంటి వైనం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓబీసీల గుండె కోతగా మారింది. कांग्रेस लीडर चामला किरण कुमार रेड्डी ने कल बीसी बंद को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि बंद को कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है।
चामल्ला ने कहा कि बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए कांग्रेस पाबंद अहद है और इस मुतालबे की हिमायत में बंद में शिरकत करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ బీసీ బంద్ రేపు జరగనున్నటువంటి బీసీ బంద్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు మా పీసీసీ అధ్యక్షులు మరియు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బీసీ బంద్ను పిలుపునిచ్చి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని సంప్రదిస్తున్నటువంటి బీసీ నాయకత్వానికి కూడా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధితోటి మీ అందరికీ తెలిసిందే రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర సందర్భంగా దేశంలో జనగణనతో పాటు కులగణన కూడా జరగాలని, కులగణనలో ఎవరికి ఎంత శాతము జనాభా ప్రాతినిధ్యం ఉంటే అంత శాతానికి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచనను రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకొస్తే తెలంగాణలో కామారెడ్డిలో బీసీ డిక్లరేషన్ సభ పెట్టి ఎన్నికలకు రాకముందే ఇచ్చినటువంటి మాటను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీ కమిషన్ని ఫామ్ చేయడమే కాకుండా డెడికేటెడ్ కమిషన్ని హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు డెడికేటెడ్ కమిషన్ని పెట్టి ఈ కులగణనను శాస్త్రీయబద్ధంగా చేసి కులగణనను చేయాలన్న పట్టుదలతోటి అటు అసెంబ్లీ వేదికగా అటు కౌన్సిల్ వేదికగా తర్వాత तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने संगारिणी मुलाजमीन के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया है। खम्मम जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने संगारिणी मजदूरों के लिए दिवाली के तोहफे के तौर पर 400 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को रोशनी देने वाले इन मजदूरों के लिए हुकूमत की जानिब से यह ऐलान खुशी का बायस है। మంచి విజయం సాధించేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా సూచిక. అటువంటి దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మంచి జరగాలని, మంచి ఆలోచన విధానాలతో ముందుకు పోయి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ అందరి జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు నిండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అట్లాగే సింగరేణి కార్మికులకి దీపావళి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటించినట్టే ఈసారి కూడా तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्बम जिला कांग्रेस के दफ्तर में एआईसीसी के मुबस्सिरीन और महारथन से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन मौजूद थे। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा विवेक वेंकट स्वामी, पूनम प्रभाकर, मेयर गदवाल, विजय लक्ष्मी, कॉरपोरेटर व दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल नवीन यादव यूसुफगुड़ा से रैली के शक्ल में पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंचे। इस रैली में सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। शेखपेट तहसीलदार ऑफिस में उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के उम्मीदवार से मुलाकात करते हुए इलाके की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। असद ओवैसी ने कहा कि हर तबके को साथ लेकर चलने में ही तरक्की है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు నిర్ణయించినటువంటి నవీన్ యాదవ్ గారు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జూబ్లీ ప్రజలందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మా నవీన్ యాదవ్ గారిని నాడు జరిగే ఎన్నికల్లో కూడా గెలిపించండి. తెలంగాణలో ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 0 స్థానాలు సాధించి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులు నిలబెట్టలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక జరిగితే కూడా సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కాదని ప్రజలు అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించి కంటోన్మెంట్లో గణేష్ గారిని గెలిపించినారు. జూబ్లీ ప్రజలు కూడా విజ్ఞతతోటి
జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించే ప్రతి ఓటరు ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి చేయడానికి సంకల్పించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నవీన్ యాదవ్ మరమ్మతులు కోరుతా ఉన్నాం. మాకు విశ్వాసం ఉంది. అందుకే టీఆర్ఎస్ పార్టీ टीपीसीसी तर्जुमान निजामुद्दीन ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस पार्टी जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की बढ़ती मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो गई है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस सोशल मीडिया पर नवीन यादव के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है, जिसमें उन पर मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस की 10 साला नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए यह झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजामुद्दीन ने पुलिस कमिश्नर सजनार से अपील की कि वो इस मामले को सुमोटो लेते हुए फौरी मुकदमा दर्ज करें। जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवीन यादव ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अनाउंसमेंट होने के बाद जुबली हिल्स के अंदर एक जोश का माहौल है। भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के अंदर कामयाब होने वाली है। नौजवानों में एक जोश आ गया। पूरी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम जो है एक किस्म का जो है जोश देख रहे हैं। ये तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हुए बीआरएस के लीडर्स जो है फेक न्यूज क्रिएट करते हुए ఈనాడులో వచ్చినట్టు ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులారా, గత 10 సంవత్సరాల కాలంగా మీ ప్రభుత్వం ఉండే 12 సంవత్సరాల కాలంగా జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే. మీరు చేసిన వైఫల్యాలు మీ వైఫల్యాన్ని కప్పుపుచ్చడానికి मक्तल हल्के के संगमबंडा रिजर्वायर में रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और वाकटी श्रीहरि ने मछलियों को छोड़ा। तेलंगाना हुकूमत ने इस मुनफरद स्कीम के लिए इस साल 122 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो मुल्क में अपनी नौयत की पहली स्कीम है। इस स्कीम के तहत रियासत भर के 46,000 आबी ज़खायर में 84 करोड़ मछली के बच्चे और 10 करोड़ झींगे मुकम्मल सब्सिडी पर छोड़े जा रहे हैं। इस स्कीम से रियासत में तकरीबन 5 लाख खानदानों को बराह रास्त और मजीद 4 लाख खानदानों को बिलवास्ता फायदा पहुंचने की उम्मीद है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कपास किसान ऐप का इफ्तिताह किया। कपास की तरक्की के लिए तैयार करदा कपास किसान ऐप का ऐलान किया, जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस ऐप के जरिए किसान अपनी पैदावार की तफसीलात दर्ज कर सकेंगे और खरीदारी मराकज से मुतल्लिका मालूमात हासिल करेंगे। यह स्कीम दिवाली से नाफिज़ अमल होगी। जो किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 10 बरसों में कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत दोगुनी हो गई है और सिर्फ तेलंगाना में CCI के जरिए 23 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की कपास खरीदी जा चुकी है। 122 सेंटर्स में हम कॉटन परचेस करेंगे। अगर मोर देन 340 जिन्निंग मिल्स इसमें प्रोसेस करेंगे। हमारे हर 122 सेंटर्स में सभी जगह कमिटीज डाले हैं जिला कलेक्टर के नेतृत्व में। किसानों से रोज़ मिलेंगे, किसानों का कोई प्रॉब्लम ना हो, मीडिएटर्स ना हो, पूरे पैसे उनके अकाउंट में डालेंगे। आधार कार्ड लिंकित करते हुए सीधा भारत सरकार किसानों के अकाउंट में इसका MSP के पैसे उनके अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में डालेंगे। 3 दिन के अंदर, अगर CCI को कपास देने के बाद 3 दिन के अंदर पैसे मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर भारत सरकार CCI के द्वारा जो कॉटन प्रोड्यूसर्स फार्मर्स है उनका अकाउंट में पैसे देंगे। दीपावली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के नफाज में बिजली शोबा कलीदी किरदार अदा करेगा। उन्होंने खम्बम और वारंगल अजला के बिजली हुकाम के साथ जायजा इजलास में कहा कि बढ़ती हुई बिजली की तलब को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ज़रूरी है। उन्होंने सोलर बिजली की पैदावार
और बढ़ाने, बिजली मुलाजमीन के लिए खुसूसी वर्दी डायल 1912 को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और हर असेंबली हलके में बिजली एम्बुलेंस फराहम करने जैसे इक़दाम का ऐलान किया। साथ ही किसानों के लिए सोलार पंप सेट और गरीबों के लिए मुफ्त बिजली स्कीम गृह ज्योति पर भी जोर दिया। इजलास में मुख्तलिफ आला अफसरान, इंजीनियर और बिजली शोबे के नुमाइंदे शरीक थे। जिला महबूब नगर के सरकारी मॉडल बेसिक हाई स्कूल में एक रोज़ा तालीमी मेला लगाया गया, जिसमें रुकन असेंबली आनंद श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असेंबली ने तालीमी मेले में असातिज़ा के तैयार करदा जदीद तदरीसी औजारों के स्टॉल्स का मुआयना किया और कहा कि इससे तलबा की महारतों में इजाफा होगा। उन्होंने असातिज़ा की तख्लीकी कोशिशों की सताइश की और कहा कि इस तरह के मेलों से तालीमी मयार बेहतर होता है। रचकुंडा पुलिस और मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए घटकेसर में हशीश ऑयल स्मगलिंग करने वाले बैन रियासती ट्रॉली का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गिरोह मंशियात को उड़ीसा से हैदराबाद लाकर फरोख्त करता था। उनके हमरा एक नाबालिग लड़की भी पाई गई, नाबालिग लड़का भी माफ़ कीजिएगा पाया गया। कार्रवाई में पुलिस ने 5 किलोग्राम से ज्यादा हशीश ऑयल जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा कि मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। 0.1 kg harsh oil. It is 1 crore 15 lakhs worth ఉంటుంది. దీన్ని మనకు ఒడిషా కనెక్షన్తో ఉన్నటువంటి దేవేంద్ర జోడియా అతను ఒక సిసిఎల్ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇట్లా అతని ద్వారా ఈ కాంట్రబాండ్ని ఇక్కడికి ఆష్ ఆయిల్ని హైదరాబాద్కు తరలించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అతను హైదరాబాద్కు ట్రైన్లో చేరుకొని గట్కేసర్లో ప్రాంతంలో సస్పిషియస్ వేలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు our SOT officials already proper system, intelligence system network ను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ మూమెంట్ మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి रियासती वजीर ज़राअत, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव और हैंडलूम्स तुमल्ला नागेश्वर राव ने कहा कि खम्मम शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने मुस्तफ़ा नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से BC गर्ल्स हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद रखा। वजीर ने ऐलान किया कि शहर में पीने के पानी के मंसूबे के लिए मजीद 220 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ताकि हर घर को साफ पानी फराहम किया जा सके। उन्होंने बताया कि खस्ता हाल वेलफेयर हॉस्टल्स की तामीर 9 के लिए भी 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। మీ కోట్లు ఉన్న ఉపయోగం లేదు, మీ ఇంటి పక్కన పరిశుభ్రంగా లేకపోతే మీరు మంచిగా బతకలేరు. దయచేసి పదే పదే ఖమ్మం ప్రజలకు చెప్తున్నా, ప్లాస్టిక్ తీసుకెళ్ళి డ్రైన్లలో వేయబోకండి. ఇంట్లో తుక్కంతా తీసుకెళ్ళి డ్రైన్లోకి నెట్కాలం। रियासती वजीर कोमर रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा के तपरती मंडल के धान खरीदारी मुराकज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारीक चावल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए रायतू बंधु और रायतू बीमा के तहत मंजूर किए गए हैं, जो 3 दिन में किसानों के खातों में जमा होंगे। रियासती वजीर ने बारीक चावल उगाने वाले किसानों को बोनस देने का भी ऐलान करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत राशन में भी बारीक चावल फराहम करेगी। नलगोंडा जिले को रियासत में दूसरा सबसे बड़ा बारीक चावल पैदा करने वाला जिला करार दिया गया है। మామిడాల కాజీరామారం అలాగే అంతయ్యగూడెం గురువేనుగూడెం తిప్పర్తి మార్కెట్లో లారీలు కూడా లోడ్లు నింపి దాదాపు జిల్లా వ్యాప్తంగా నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా मेदक जिले के हौलीगनपुर मंडल में वाक़ डाइट कॉलेज में फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए एक आगाही इजलास दरअसल मुनक़िद किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में मयारी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी सतह से तलबा की सलाहियतों को निखारने पर जोर दे रही है। कलेक्टर ने असातिज़ा से कहा तलबा की हाज़िरी और सीखने की अहलियत को बेहतर बनाने के लिए संजीदगी से काम करें ताकि सभी तलबा कम अज़ कम तालीमी मयार हासिल करें। उन्होंने हिदायत दी कि रवां साल 10वीं जमात के तलबा की 100% कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
हनुमाकुंडा में बीआरएस जिला दफ्तर में साबिक चीफ व्हिप और जिला सदर विनय भास्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर ने हर तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात में दी गई जमानतें झूठ पर मबनी थी। किसानों, नौजवानों, अकलियतों और बीसी तबके को धोखा दिया गया है। वरंगल में साबिक रुकन असेंबली कॉमरेड की 17वीं बरसी यहां पर मनाई गई है। एम ओमकार कॉमरेड की 17वीं बरसी के तौर पर काफ़ी भीड़ भी देखी गई। वरंगल के इलाके में वाक़े ओमकार भवन में साबिक एमएलए और गरीबों के मसीहा की बरसी के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। मौके पर एमसीपीयूआई के जिलाई सदर नारा प्रताप और सिटी सेक्रेटरी सागर ने कहा कि ओमकार के 5 बरस के एमएलए मुंतखब होकर गरीब आवाम की खिदमत में उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि ओमकार ने भूख से तड़पते लोगों की फलाह के लिए जद्दोजहद की और उनकी जद्दोजहद आज भी हम सब के लिए तहरीक है। प्रोग्राम में जगदीश, मल्लिकार्जुन, नागेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेदक के रुकन असेंबली डॉक्टर रोहित राव ने आज शहर में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने चर्च के करीब ज़ेर तामीर सीसी रोड का जायजा लेते हुए मयारी काम की हिदायत दी। दौरे के दौरान उन्होंने मुस्तहकीन में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स भी तकसीम किए। महबूब नगर जिला कलेक्टर ने कोयलकुंडा मंडल के एक गांव का दौरा किया। इस गांव में इंद्रम्मा मकानात की तामीर का पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मुस्तहिक लोगों से बातचीत भी की, मकान की तामीर से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने मुकम्मल शुदा मकान का भी मुआयना किया और मुस्तहिकीन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के डिज़ाइन के मुताबिक मयारी और कम खर्च में मकानात तामीर करें। जगतियाल जिले में वाक़े झील के पुश्ते में शगाफ पड़ने के खदशे के पेश नज़र डैम सेफ्टी हुकाम ने आज यहां पर मुआयना किया। हाल ही में झील के पुश्ते का कुछ हिस्सा ज़मीन में धंसने के बायस किसानों में तशवीश पैदा हो गई, जिस पर महकमा आबपाशी ने फौरी तौर पर माहिरीन की टीम को रवाना किया। मुआयने में एनसी नामराजू, सेफ्टी ऑफिसर विजयलक्ष्मी और दीगर मौजूद रहे। हुकाम ने पुश्ते की मरम्मत के लिए तफसीली रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भेजने का फैसला किया है ताकि फौरी इक़दाम किए जा सकें। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। फिलहाल हैदराबाद में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,180 रुपये हो गई है। इस तरह चांदी की कीमत में भी 500 रुपये का इजाफा हुआ। आज शहर हैदराबाद में 1 किलो चांदी की कीमत 1,85,000 रुपये हो गई है। दिवाली त्यौहार के मौके पर तमाम अशिया की कीमतें कम हो जाती है। गाड़ियाँ, कपड़े और दीगर अशिया छूट पर दी जाती है, जबकि सोने चांदी की कीमतों में कोई रियायत नहीं। ये जेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तेलंगाना न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।